All right, let's get started with the problem for this episode. That is this. We are going to solve this 14th number problem in this series. That is finding the largest and smallest numbers in an array. Problem read करने से ही like it's pretty easy and straightforward problem to understand कि हमें actually करना ये है. We have to write a program in which एक array दिया जाएगा. हमें उस array में जो obviously उस array में कुछ bunch of numbers दिए जाएंगे, ठीक है? Integer numbers you can consider. So we have to find out which is the largest element or largest number amongst those values and which is the smallest. Okay. So this is the thing. आप जैसे कि देख भी सकते हो यहाँ एग्जाम्पल से कि you can clearly see कि 4 7 1 8 5 ये एक array है, ठीक है? The smallest number you can say it's 1, so it is 1, and the largest number it is 8. So this program basically we have to write. So let's I hope so the problem is pretty straightforward and easy to understand. So problem clear हो गया होगा. हमें क्या करना है? Let's really quickly deep dive into the code bit of part और directly हम समझते हैं कि इसे हम कैसे प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? एंड मील वाई मैं आपको समझाते चलूँगा ऑल द लॉजिक एंड ऑल, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल. दिस इज 14th नंबर. ओके, वी आर सॉल्विंग लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एरे. ऑलराइट, सो लेट्स राइट ऑल द बॉयलरप्लेट कोड एंड ऑल, ठीक है? सो इंपोर्टिंग आईओ स्ट्रीम using the names, the standard namespace actually, the main function return 0. Now all right, so now first of all देखो हमारा first of all task है कि see you can go two ways from here कि या तो आप एक array ले लो. like obviously अगर आपको I hope so you know कि array कैसे declare करते हैं. सिंपल उस array के elements का data type आपको यहाँ लिखना है. then after that any name you give, okay, feel free to give any name you want. I am giving as the array, okay, and उसका उसमें कितने number of elements रहेंगे, say for example 4. वो देखिए आप यहाँ पर करली ब्रेसेस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट करली ब्रेसेस से आप एक एरे आप बनाओगे. देन आप उसमें वैल्यूज आप दे दो, ठीक है? सो आइदर यू कैन डू दिस या फिर लेट्स टेक इट मोर फर्दर एंड हम इन यूजर से ही इनपुट लेते हैं एरे, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर और मेंशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी इन दैट एरे. ओके, सो क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइज हमें फिक्स करना पड़ता है, ठीक है? So okay, give your variable name anything you want, number of elements या फिर simple आप n लेके चलते हैं. So okay, just remember कि this n is basically the number of elements of that array, ठीक है? Just remember this. Now okay, now let's give a simple message like cout and write enter the number of elements of the array of your array. Okay, write anything, a display message actually, and using cin हम उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैप्चर कर लेंगे. नाउ द थिंग इज कि हमें आफ्टर दिस वंस वी गॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे, नाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे हियर. कैसे? वापस इंट माय या फिर द एरे. okay, now in this square brackets you have to give the number of elements here, ठीक है? So now the array is being declared, ठीक है? अब the important step is कि हमें we have to iterate the number of times this much number of times, okay, n number of times, and हमें उस array के elements हमें array के elements को input लेना है user से. So we will run a loop here for int I is equals to, yeah, we have to start from 0 because 0 index से start करना है, and we have to go to n minus 1. this is most important, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ ये चीज़ अगर आपको समझने में इशू है, so let me be clear है कि you know यार कि array कुछ बनेगा अगर हमने n is equals to 4 दिया है, so you know कि 4 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आएंगे उस एरे में. दिस इज लाइक क्लियर, ओके? बट द थिंग इज कि इंडेक्स जो है वो तो ऐसे रहेगा 0 1 2 एंड 3, ठीक है? सो n -4 तक n-1 तक हमें चलना है. सो फॉर दैट हम सिंपली i लेस दैन इक्वल नहीं करेंगे, सिंपल लेस दैन n कर लेंगे, ठीक है? यू कैन, आप दो तरीके से कर सकते हो इसे, आइदर लेस दैन n या फिर लेस दैन इक्वल टू n-1. तो वही है कि काफ़ी ये वो हो जाएगा, तो सिंपल लेस दैन आप n कर सकते हो, ठीक है? नाउ इंक्रीमेंट i एंड दैट्स इट. अब हमें सीन करवा के इनपुट लेना है, ठीक है? सो आप सीन करके द एरे के ith पोजीशन में आप जो भी वो यूज़र एंटर करेगा यहाँ पर, जो भी वो यूज़र इनपुट करेगा वो जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अप टिल नाउ हम एक काम करते हैं, एक नॉर्मल एक लूप रन करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एरे में वैल्यूज स्टोर हो रहा है कि नहीं. सो फॉर दैट चेकिंग ऑब्वियसली हमें एरे में भी लूप चला के हमें चेक करना पड़ता है कि उसमें क्या एलिमेंट्स है, ठीक है? सो जस्ट ट्रैवर्स इन इट.
मैं बहुत बार ये ट्रैवर्सिंग का जो फॉर लूप है मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। सिंपल आप डेटा टाइप दोगे, देन वो आइटरेटिंग ऑब्जेक्ट, देन कोलन और उस पर्टिकुलर डेटा का नाम, अगर वो स्ट्रिंग है या फिर एरे है जो भी है, ठीक है। नाउ लूप के अंदर सी आउट द एक्स, ओके सिंपल। बस हम चेक कर रहे हैं कि अभी ये बस हम सिंपल लूप इसलिए रन कर रहे हैं, वी आर बेसिकली चेकिंग कि हमारा प्रॉपर इनपुट हो रहा है कि नहीं, एंड एरे क्रिएट हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स रियली क्विकली रन, और आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो से फॉर एग्जांपल मैं 5 अगर एंटर करूँ तो ऑब्वियसली अब 5 जो है एरे का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो अब 5 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर लिखना है, लाइक 12 13 14 15 एंड 16। तो अब हम हाँ या ऑब्वियसली आप ऐसे याद रखना कि आप अगर एक लाइन में दे रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप एक स्पेस हिट करके आप नेक्स्ट फर्दर एलिमेंट लिखो, ठीक है। एंड एज यू हिट एंटर यू कैन क्लियरली सी कि हाँ हमारा मतलब ये वापस क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने उस एरे में लूप रन किया प्रॉपर और सारे उसके जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट करवाए, और जो कि आप क्लियरली देख सकते हो सही आ रहा है। सो या दैट मीन्स हमारा एरे क्रिएट हो रहा है एंड ऑब्वियसली उसमें जाके वैल्यू स्टोर भी हो रही है, ठीक है। सो नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा टास्क है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव टू बेसिकली फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। सो फॉर दैट अब ऑब्वियसली हमें सबसे पहले ऑब्वियसली लूप इसमें तो रन करना ही है, तो इसका हम लॉजिक समझते हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या कि देखो हम पहले ही, अब मैं यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि हम ऑलरेडी एडवांस में ही हम क्या करेंगे कि एक जैसे एक नॉट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें कि हम वो जो एरे का फर्स्ट है, मतलब कोई देखो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है आप इसको 0 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से हम फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट बैठा है वो देते हैं। अब वो लोग ऐसा क्यों किया, जस्ट होल्ड ऑन, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद स्मॉलेस्ट भी हम कर देते हैं। स्मॉलेस्ट में भी आपको ऐसा ही करना है कि आपको एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपको स्टोर करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ये ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना कि हम एक ऑब्वियसली लार्जेस्ट हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट के लिए हमने एक लार्जेस्ट वेरिएबल में उस एरे में कोई सा भी जो एलिमेंट है वो हमने स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो एरे ये मान लीजिए, यही है, मान लीजिए 12 13 14 15 16। तो इसमें आपको पता है कि 16 है लार्जेस्ट, 12 है स्मॉलेस्ट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीरो दिया हो, जीरो ही देना है। आप यहाँ पर कुछ वैसे तो मतलब आउट ऑफ इंडेक्स मत देना, आउट ऑफ बाउंड्री मत देना, 3 देना मान लो, तो आप बिल्कुल दे सकते हो, आप 3 दे सकते हो, 4 दे, कुछ भी दे सकते हो, मतलब n के अंडर ही आप दे सकते हो। पर जीरो ऐसे ये कन्वेंशन है कि हमने स्टार्टिंग एलिमेंट हम ले लेंगे। हम एक्चुअली करेंगे क्या, हम इस एरे, अब ये जो हमारा एरे था, ठीक है, ये एरे जो था, इस एरे में हम लूप रन करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल ये एरे कुछ ऐसा ही था, ठीक है, 12 13 14 15, मान लो ऐसे 15, ये कुछ 4 है, ठीक है। हम अब क्या होगा कि अब जब हमने लार्जेस्ट में हमने क्या स्टोर किया है, इफ यू रिमेंबर, एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है, सो फर्स्ट एलिमेंट इसमें देखा जाए तो 12 है, ठीक है। सो करंटली ऐसे हमने 12 स्टोर किया, एंड सेम गोज फॉर स्मॉलेस्ट में भी हमने 12 स्टोर किया, नो इश्यूज इन दैट। मेन जो लॉजिक हमारा, मेन जो ये वैल्यू अपडेट कब होगा, जब अभी हम एक लूप रन करेंगे, इसमें होगा। इस लूप में एक्चुअली हम क्या करेंगे, वी विल आइट्रेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स इन दिस लूप। हम हर एलिमेंट, अब देखो 4 एलिमेंट्स है तो चारों एलिमेंट्स में ये लूप रन होगा। हम सबसे पहला कंडीशन देंगे। कंडीशन हम ये देंगे, जो कंडीशन रहने वाला है वो ये देंगे कि हम हर बार जो एलिमेंट, हर आइट्रेशन में हम उस एलिमेंट को हमारे हमने जो स्टोर करवाया है लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, इससे हम कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, आपको पता है कि जो एलिमेंट रहेगा वो 12 होगा, ठीक है। अगर ये जो यहाँ जो वैल्यू है, इस जो हमारा जो करेंटली वो जो उस करंट आइट्रेशन पे जो वैल्यू रहेगा, दैट इज फर्स्ट टाइम में 12 है, ऑब्वियसली हम चेक करेंगे ये क्या इससे बड़ा है, ठीक है, इस लार्जेस्ट से बड़ा है। अगर बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ, अब जैसे कि देखो पहली बार देखते हैं, ठीक है। पहली बार जब लूप रन हुआ तो क्या 12 से बड़ा है, नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में देखेगा, हाँ ये जो 13 है ये तो लार्जेस्ट से बड़ा है। अब क्या करेंगे ना, हम पता है अब हम क्या करेंगे कि इस लार्जेस्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अपडेट कर देंगे टू दिस 13, ठीक है, मतलब ओवरराइड हो जाएगा एक तरीके से। तो फर्स्ट टाइम था 12 था, 12 कोई दिक्कत नहीं, लार्जेस्ट 12 ही रहेगा। सेकंड एलिमेंट जब जैसे ही आएगा, 13 जैसे ही आया, हमने कंडीशन चेक किया, अगर लार्जेस्ट हुआ तो ओवरराइड कर दो, तो अभी लार्जेस्ट की वैल्यू 13 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर रुकेगा नहीं, अभी वापस अगले आए, क्योंकि हमें, अब देखो आप बोलोगे तो लार्जेस्ट 13 हो गए, लेकिन लार्जेस्ट तो 15 है हमारे पास। तो ऑब्वियसली वही है कि हमें पूरा लास्ट तक पूरा थ्रू आउट द एलिमेंट,
पूरा थ्रू आउट द एरे हमको चेक करना है कि जो लार्जेस्ट एंड तक जो लार्जेस्ट मिल गया वही है, ठीक है। सो 13 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम 14 होगा, 14 ऑब्वियसली 13 से बड़ा है, वो फिर वापस ओवर ऐड हो जाएगा वैल्यू, तो 14 हो जाएगा यहाँ पर। फिर लास्ट एलिमेंट के पास आया, लास्ट एलिमेंट 15 जो कि 14 से बड़ा है, फिर ओवर ऐड हो जाएगा, जो कि लास्ट हमको फाइनली जो है लार्जेस्ट का हमको वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 15। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, अगर मान लो ये 4 रहता, ये 15 रहता, ये ऐसे कुछ रहता, ठीक है, तो 12 हुआ, ठीक है, दूसरी बार में 13 होगा, फिर थर्ड टाइम में 4, यहाँ पर आप इमेजिन करो ना, यहाँ पर 13 है, ठीक है। अब इस वाले आइट्रेशन में क्या चेक हो रहा होगा कि क्या 4 13 से बड़ा है, नहीं, तो नहीं बड़ा है तो सिंपल है, वो 13 का 13 ही रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम में 15 मिल गया, तो हाँ 15 तो बड़ा है, तो 15 ओवरराइड हो जाएगा। एंड सेम वी विल डू फॉर द स्मॉलेस्ट ऑल्सो, कि एक और उस लूप में ही हम एक और कंडीशन लगाएंगे जो कि स्मॉलेस्ट के लिए अपडेट कर रहा होगा, राइट। कि फर्स्ट टाइम आया 12, क्या 12 से छोटा है ना, तो चलो आगे बढ़ जाएगा। क्या 13 12 से छोटा है, नहीं, 12 ही रहेगा। अब आता है 4, क्या 4 12 से छोटा है, हाँ, तो 4 हो जाएगा। अब 15, अब वही बात है ना, 15 चेक करेगा, क्या 15 तो नहीं, छोटा नहीं बड़ा है, तो वो 4 का 4 ही रहेगा। एंड दिस इज हाउ वी विल गेट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर in that array, ठीक है। So let's implement this practically and programmatically in our code. So simple, हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लूप रन करेंगे, तो वो हम ट्रैवर्सिंग लूप ही रन करते हैं। कोई ऐसा देखो, अब आपकी मर्जी, आप int x इक्वल टू 0 करो, लेकिन हम ट्रैवर्सिंग रन कर सकते हैं यहाँ पर। सो x देके हम वो एरे का नाम दे देंगे। देन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमें दो कंडीशंस लगाने हैं। कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा, अगर x बड़ा हो गया किससे, लार्जेस्ट से। आई होप सो x आपको पता है यहाँ पर क्या है, ठीक है। x जो एरे का वो जो एलिमेंट रहेगा वही रहेगा, तो हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। अगर x लार्जेस्ट, जो करंट लार्जेस्ट की वैल्यू उससे बड़ी रहेगी, देन आप लार्जेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर दो टू व्हाट, x, या एज सिंपल एज दैट। एंड यार सेम वी विल डू फॉर द स्मॉलेस्ट वन, कि आप यहाँ पर याद रखना, आप देखो यहाँ पर आप एल्स मत देना या फिर एल्स कुछ मत देना। आप क्या देखो, हम क्या, हमें ये जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो, हम सेपरेट दो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज नो नीड कि आप एल्स दो, एल्स इफ दो, इससे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आप एक सेपरेट इफ कंडीशन एक फ्रेशली आप दे सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्मॉलेस्ट के लिए चेक कर रहा होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर स्मॉलेस्ट से वो छोटा होगा, देन स्मॉलेस्ट की वैल्यू अपडेट कर दो टू x, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। एंड बस अब देखो यार, हमें ऑनेस्टली बताऊँ तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की वैल्यू हमें मिल गई है इतने कोड में। नाउ फाइनली हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो द लार्ज हम प्रिंट कर सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट हम प्रिंट कर सकते हैं लार्जेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट हम प्रिंट कर सकते हैं smallest. Okay, I hope so this is clear, and with an end L here, and this is clear, ठीक है। अब देखना all the errors are gone, and finally हमारा कोड I hope so पूरा perfect है। and let's really quickly run this code as well, चेक करते हैं कि प्रॉपर हमारा सब सही आ रहा है कि नहीं। ओके, एंटर द एलिमेंट्स। सो लेट्स गिव 5, या फिर हम ये जो हमारे प्रॉब्लम में था हम यही उठाते हैं। प्रॉब्लम में कुछ 4 7 1 8 5 ये था, ठीक है। लेट्स टेक दिस, एंड वी ऑल नो कि स्मॉलेस्ट 1 है एंड लार्जेस्ट 8 है। सो या आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट 8 आ रहा है एंड स्मॉलेस्ट 1 आ रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई वंस मोर। 4 मतलब 4 हो गया साइज एरे का। सो यही था, लाइक 20 24 2. So we know largest is 24 and smallest is 2. So yeah, I hope so the code is clear, the concept is clear, the logic is clear, and yeah, this was the solution for today's problem.